بلٹن کا آغاز کریں گے۔ تاریخ میں پہلی بار پنجاب کابینہ کا اجلاس آج فیصل آباد میں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ کابینہ 20 نکاتی ایجنڈے پر غور کرے گی۔ فیصل آباد ڈویژن میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ نگراں کابینہ کا اجلاس فیصل آباد میں طلب کر لیا گیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کابینہ اجلاس کی صدارت کریں گے۔ تاریخ میں پہلی بار راولپنڈی اور ملتان کے بعد ڈویژنل ہیڈ کوارٹر فیصل آباد میں کابینہ کا اجلاس ہوگا۔ 20 نکاتی ایجنڈا کابینہ اجلاس میں منظوری کے لیے زیر بحث آئے گا۔ وزیر اعلیٰ فیصل آباد ڈویژن میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا بھی جائزہ لیں گے۔ محسن نقوی فیصل آباد کے مختلف مقامات کا اچانک دورہ بھی کریں گے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی دورہ فیصل آباد میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ 1 ارب 36 کروڑ روپے کی اسکیم عبداللہ پل فلائی اوور کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ پرانی سبزی منڈی میں 32 کروڑ کے پبلک پارک، 25 کروڑ کی لاگت سے فیصل آباد ڈرینیج سسٹم کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ الائڈ اسپتال کے ایمرجنسی بلاک کے توسیع منصوبے پر 30 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی۔ ہسپتالوں کی بحالی کے 1 ارب سے زائد کے منصوبوں کے سنگ بنیاد رکھے جائیں گے۔ 90 کروڑ کی لاگت سے عبداللہ خان سنبل ہائی پرفارمنس کرکٹ سینٹر کا سنگ بنیاد بھی رکھا جائے گا۔ فیصل آباد میں ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ بھی لی جائے گی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ریکارڈ کمی کا براہ راست فائدہ پنجاب کے عوام تک پہنچانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے قیمتوں میں کمی کے لیے 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دے دی۔ ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں 10% تک کمی اور پرائز کنٹرول مجسٹریٹس، پرائز کنٹرول کمیٹیوں کو فعال کردار ادا کرنے کا حکم دیا۔ مہنگائی کے ماروں کو بڑا ریلیف مل گیا۔ پیٹرول 40 روپے سستا ہو کر 283 روپے 38 پیسے کا لیٹر ہو گیا۔ ڈیزل کی قیمت بھی 15 روپے کمی سے 303 روپے 18 پیسے لیٹر پر آ گئی۔ پنجاب حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ریکارڈ کمی کا براہ راست فائدہ عوام کو پہنچانے کا بڑا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے قیمتوں میں کمی کے لیے 48 گھنٹوں کی ڈیڈ لائن دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں کمی کے لیے صوبائی وزیر اور سیکرٹری ٹرانسپورٹ کو کرایوں میں 10% کمی کا ٹاسک سونپ دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں صوبائی وزیر صنعت و زراعت ایم ایس تنویر کو گھی، فلور اور دیگر ایسوسی ایشن سے قیمت دیا گیا۔ سیکرٹری زراعت، کمشنرز اور ڈیپٹی کمشنرز کو روزمرہ اشیاء کی قیمتوں میں کمی کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت کی گئی۔ چیف سیکرٹری روزانہ کمشنرز اور ڈیپٹی کمشنرز سے رابطہ کر کے قیمتوں میں کمی کے لیے اقدامات کا جائزہ لیں گے۔ محسن نقوی نے پرائز کنٹرول مجسٹریٹس اور کمیٹیوں کو فعال کرنے کے لیے احکامات بھی جاری کیے۔ اجلاس میں ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بھرپور بلا امتیاز کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا حقیقی فائدہ اسی صورت میں ہوگا جب اشیاء ضروری اور ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں بھی کمی کی جائے گی۔ وزراء ایم ایس تنویر، ڈاکٹر جاوید اکرم، منصور قادر، عامر میر، ابراہیم حسن مراد، چیف سیکرٹری، آئی جی پنجاب، مختلف محکموں کے سیکرٹریز، کمشنر لاہور، چیئرمین پنجاب پرائز کنٹرول، ایم ڈی یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن سمیت متعلقہ حکام اجلاس میں شریک تھے۔ پی ٹی آئی کی ایک اور وکٹ گر گئی۔ فاروق حبیب نے پی ٹی آئی سے راہیں جدا کر لی۔ تحریک استحکام پارٹی کے دفتر میں پریس کانفرنس میں فاروق حبیب نے کہا، 9 مئی کا واقعہ افسوسناک ہے۔ تحریک عدم اعتماد آئینی طریقے سے پیش کی گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی چاہتے تھے لوگ سڑکوں پر لڑیں۔ سائفر کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے بوائلنگ پوائنٹ تک پہنچا دیا۔ چیئرمین تحریک انصاف توشہ خانہ سے گھڑیاں لے رہے تھے مگر کابینہ کو پتہ ہی نہیں تھا۔ لیڈرشپ کی ذمہ داری تھی کہ وہ تدبر دکھاتے، وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے، لیکن ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ان کو یہ تھا کہ لوگ میرے لیے باہر لڑیں۔ آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ باہر کس کا سر پھٹ گیا، کس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کس کے ساتھ کیا ہوا۔ اور جو کچھ اس دن ہوا، جس طریقے سے ہوا، یہ انتہائی افسوسناک تھا، یہ انتہائی کنڈیمنیبل تھا، اور یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک سیاہ واقعے کے طور کے اوپر جو ہے اس کو یاد رکھا جائے گا۔ آپ نے چیزوں کو ایک مائنڈ سیٹ کو ایک ایسے بوائلنگ پوائنٹ کے اوپر پہنچا دیا کہ لوگ اپنی افواج کے خلاف لڑنے نکل پڑے۔ کروڑوں روپے کے فنڈز مبینہ ملی بھگت سے کرپشن کی نظر۔ محکمہ ہائی وے کی جانب سے پل کی تعمیر نو میں ناقص مٹیریل کے استعمال کا انکشاف۔ اڈا ونگیاں تاکھڑیاں والا جڑاوالا روڈ پر پل کے ٹیسٹ فیل کر دیے گئے۔ ٹیسٹنگ لیبارٹری نے محکمہ ہائی ویز کی شفافیت کا پول کھول دیا۔ محکمہ ہائی وے کی جانب سے پل کی تعمیر نو میں ناقص مٹیریل کے استعمال کا انکشاف ہوا ہے۔ اڈا ونگیاں تاکھڑیاں والا جڑاں والا روڈ پر پل کے ٹیسٹ فیل کر دیے گئے۔ ڈائریکٹر مانیٹرنگ اینڈ ایویلیشن کی جانب سے 15 ٹیسٹ مٹیریل کی رپورٹ فیل کر دی گئی۔ 2 کروڑ سے زائد کے فنڈز سے پل تعمیر کیا گیا تھا، جبکہ سڑک کے لیے 18 کروڑ سے زائد کے فنڈز مختص تھے۔ ٹیسٹنگ لیبارٹری میں 24 میں سے 15 مٹیریل ٹیسٹ ناکام ہوئے۔ ڈائریکٹر مانیٹرنگ نے رپورٹ CNW اور محکمہ ہائی وے کو ارسال کر دی۔ کیمرہ مین کے ساتھ عمران اسلم، City 41 فیصل آباد۔
चिन्नौट के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की इकलौती सीटी स्कैन मशीन खराब हुए 2 हफ्ते गुजर गए। हाल से बेहाल मरीज सिटी स्कैन की सहूलत मुयसर न होने से ख्वार होने लगे। जिला के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की सिटी स्कैन मशीन 2 हफ्तों से खराब है, जिसको ठीक नहीं कराया जा सका, जिसके बायस मरीज ख्वार हो रहे हैं। मरीज और साथ आने वाले लवाहिकीन का कहना है कि दूर देहात से सफर करके यहाँ अस्पताल आए हैं तो पता चला है कि यहाँ की सिटी स्कैन मशीन खराब है, जिस वजह से और भी अजियत में मुब्तला हो गए हैं। भाईजान 20-25 किलोमीटर का सफर किया है, बाई हाल से मैं आया हूँ और इधर सिटी स्कैन कराना था। 10-15 दिन हो गए, चक्कर लगा रहे हैं, कभी कहते हैं मशीन ख़राब है, कभी कुछ। इधर से अगर फैसलाबाद रेफर किया जाए तो बहुत ज़्यादा खर्चा है। गरीब आदमी है भाईजान, मेहरबानी करें, कोई हमारा हल करें। मरीजों के लवाहिकीन ने बताया कि अगर किसी को फैसलाबाद ले जाएं तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, जबकि अखराजात अलग से होते हैं और सफ़र जैसी दोहरी अजियत भी बर्दाश्त करना पड़ती है। उन्होंने मुतालबा किया कि मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला शहरियों को सिटी स्कैन कराना होता है, लिहाजा अस्पताल इंतजामिया मशीन जल्द ठीक कराए। अस्पताल इंतजामिया का कहना था कि प्राइवेट कंपनी सिटी स्कैन मशीन ठीक करती है। एक्सरे ट्यूब खराब होने और मैकेनिकल फॉल्ट की वजह से मशीन बंद हुई। उम्मीद है आज शाम तक ठीक हो जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद रंगदेव के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्नौट। पंजाब हुकूमत अवाम को सेहत सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां। एलाइड अस्पताल 1 में 4000 मरीजों के लिए मुफ्त PCR किट्स फराहम कर दी गईं। हेपेटाइटिस के मर्ज की तशखीस हो सकेगी। अलाइड अस्पताल फैसलाबाद में निगरान हुकूमत ने 4000 मरीजों के लिए PCR किट्स भिजवा दी, जिससे मर्ज की तशखीस हो सकेगी। DMS एडमंड डॉक्टर सलीम हरल का कहना था कि चंद दिन हेपेटाइटिस की किट्स का मसला बना था, मगर अब किट्स टेंडर के बाद मुख्तलिफ मराहल में आ रही हैं। इन्होंने निगरान हुकूमत का हेपेटाइटिस किट्स की बरवक्त फराहमी पर शुक्रिया अदा किया। हेपेटाइटिस किट्स की फराहमी से गरीब व मुस्तकिल मरीजों को सुबह के औकात में मुफ्त टेस्टों की सहूलत मिलेगी। हमारे पास किट की पहले भी कोई शॉर्टेज नहीं रही, इतने ज़्यादा दिन 2-4 दिन की कमी आई है। अब अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा हमें मुहैया कर दी गई हैं और 4000 तकरीबन हमारे पास आ गई हैं और अभी पाइपलाइन में मज़ीद भी आ जानी है। और मरीज़ों को हम जो डिज़र्विंग पेशेंट हैं उनके हम फ्री टेस्ट कर रहे हैं। अलाइड अस्पताल 1 में रोजाना तकरीबन 20 से ज़ायद मरीजों के हेपेटाइटिस के टेस्ट किए जा रहे हैं। कैमरामैन इरफान मलक के साथ अज़दार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। फेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन। रीजन से 38 रोज के दौरान मजमूई तौर पर 2875 बिजली चोरों को धर लिया गया। करोड़ों रुपए के जुर्माने आयद। फेस्को हुकाम ने बिजली चोरी रोकने के लिए तमाम मुलाजमीन और अफसरान से हल्फ लेने का फैसला किया है। फेस्को रीजन से 38 रोज के दौरान मजमूई तौर पर 2875 बिजली चोर पकड़ लिए गए। बिजली चोरी में 2722 घरेलू, 79 कमर्शियल, 69 ज़रई, 5 इंडस्ट्रियल कनेक्शन मुलवस पाए गए। मजमूई तौर पर 79,26,000 से जायद डिटेक्शन यूनिट्स पर 35 करोड़ 69 लाख से जायद का जुर्माना आयद किया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को चौधरी बशीर अहमद ने बताया, रीजन में मजमूई तौर पर 2779 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात का इंदराज भी हो चुका। 2290 बिजली चोर गिरफ्तार, 17 करोड़ 52 लाख से जायद की रिकवरी भी कर ली गई। बिजली चोरी का हैरान कुन अंदाज, मीटर में रिमोट कंट्रोल सिस्टम लगाकर बिजली चोरी की जाने लगी। बिजली चोरी का रिमोट कंट्रोल सिस्टम वाईफाई पर चलाया जा रहा था। हुकाम ने बिजली चोर सारिफ को 6 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया। एक्सीन मकास रशीद का कहना है कि बिजली चोर सारिफ की जानिब से मीटर में जदीद तकाजों पर मबनी सिस्टम लगाया गया। बिजली चोर सारिफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया। फेस्को बिजली चोरी रोकने के लिए मुतहर्रिक। फेस्को का तमाम मुलाजमीन अफसरान से हल्फ लेने का फैसला। अगर बिजली चोरी में मुलव्वस पाया गया तो महकमा मुलाजमत से निकाल दे। बिजली चोरी रोकने के लिए फेस्को अमला का भी एहतसाब होगा। तमाम सर्कल्स को अमला के हल्फ लेने के मुतल्लिक हदायत जारी कर दी गई। फेस्को हुकाम का कहना था कि महकमा की काली भेड़ों से कोई रियायत नहीं होगी। टोबा टेक्सिंग के शहरी को एक कचहरी में फेस्को अमले के खिलाफ शिकायत करना महंगा पड़ गया। फेस्को चीफ को शिकायत क्यों की, लाइन सुपरिटेंडेंट इंतकामी कार्रवाई पर उतर आया। 330 गाबे के रिहायशी मोहम्मद अकराम का कहना है कि मेरे खिलाफ बिजली चोरी का इल्जाम लगाकर झूठी FIR दर्ज करा दी गई और अमला मीटर उतार कर ले गया। बूढ़े वालद के साथ दफातर के धक्के खाने पर मजबूर हूँ। फेस्को चीफ मामले का नोटिस लें। फेस्को ने नए 132 kV के ग्रिड स्टेशन के लिए डिप्टी कमिश्नर से जगह मांग ली है। चीफ इंजीनियर डेवलपमेंट PMU फेस्को ने डिप्टी कमिश्नर को मरासला भिजवा दिया। तहसील जरावाला के चक 109 में 24 कनाल 11 मरला जगह अलॉट करने की दरख्वास्त दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। फैसलाबाद में फेस्को ने नए 132 kV ग्रिड स्टेशन के लिए डिप्टी कमिश्नर से जगह मांग ली। चीफ इंजीनियर डेवलपमेंट PMU फेस्को ने डिप्टी कमिश्नर को मरासला भिजवा दिया है। तहसील जरावाला के चक 109 में 24 कनाल 11 मरला जगह अलॉट करने की दरख्वास्त की गई है। नया ग्रिड स्टेशन बनाने से तहसील जरावाला को बिजली की सप्लाई में बेहतरी आएगी। नया ग्रिड स्टेशन बनने से तहसील जरावाला के लिए लो वोल्टेज के मसाइल हल होंगे। चीफ इंजीनियर डेवलपमेंट फेस्को ने चक 109 में सरकारी जमीन की मौजूदगी की निशानदही भी की है।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, निगरान वफाकी हुकूमत की जानिब से अवाम को बड़ा रिलीफ। जंग के ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफरों ने सुख का सांस लिया। महंगाई के स्थायी अवाम के लिए खुशखबरी, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 40 रुपए तक कमी की गई। शहरियों ने हुकूमती ऐलान पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में कमी करके अच्छा किया, इस कमी से अच्छा असर पड़ेगा। महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया, पेट्रोल की कीमतों में मजीद कमी होनी चाहिए। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बाइस कारोबार ठप हो गया था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से नई उम्मीद पैदा हुई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी लाने का मुतालबा किया गया है। शहरियों ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात आम आवाम तक मुंतकिल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ वसीम अजीज, CT41 जंग। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर अवाम का इजहार मुसर्रत, लारी अड्डा ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए कम कर दिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी, लारी अड्डा ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए कम कर दिए। लाहौर का किराया 550 से 500 रुपए कर दिया गया। मुल्तान का किराया 1200 से 1100 कर दिया गया। ननकाना साहिब का किराया 320 से 300 कर दिया गया। जड़ावाला का किराया 150 से 140 कर दिया गया। सरगोधा का किराया 500 ही मुकर्रर। फतेहपुर का किराया भी कम कर दिया गया। तेल की कीमत कम हुई है तो किराए में कमी करनी चाहिए, तो मुस्बत फैसला यही है। जितना कमी होगा 50 रुपये कम कर दिए गए। जो 800 था 750 हो गया, जिसका 600 था उसका 550 हो गया। कम तो हुआ किराए, आवाम के लिए अच्छा हुआ ना। मुसाफिरों के इस हवाले से कहना था कि किराए में कमी होना खुश आइंद बात है। महंगी ट्रांसपोर्ट पर भी सफर करना इंतहाई मुश्किल हो गया था। इस महंगाई के दौर में गरीब के लिए एक ठंडी हवा का झोंका है। हर किराए में 50 से 100 रुपए तक कमी हुई। किराया घटा दिता, पेट्रोल सस्ता आया हुआ ते हर एक बस वाला किराया घट लैंड। अल्हम्दुलिल्लाह मजीद किराए दी ना कोई कमी वाली ना अपील की जाती है कि होर पेट्रोल मसनूआत में कमी की जाए। गरीब आवाम के लिए बहुत अच्छा काम किया गया, इसलिए अपील की जा रही है कि डीजल की, पेट्रोल जो चीज़ें खाने पीने वाली हैं वो और कम की जाएं। मजदूर बंदे की जो अपना साह निकलता जावे। मुसाफिरों ने निगरान हुकूमत से मुतालबा किया कि यूं ही इक़दाम किए जाएं और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी की जाए ताकि गरीब आदमी को रिलीफ मुयस्सर आ सके। कैमरामैन ईमान भट्टी के साथ फसीह नकवी, CT41 फैसलाबाद। जंग में 3 अरब 80 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबे, कितना काम हुआ, कितना बाकी, जायजा लेने के लिए वर्ल्ड बैंक का वफ्द जंग पहुंच गया। तरक्याती कामों का मुआयना, अवामी शिकायत का अजाला करने के लिए फीडबैक लेने का तलकीन कर दी गई। जंग में वर्ल्ड बैंक के ताउन से PMDFC के 3 अरब 80 करोड़ रुपए की लागत के तरक्याती मंसूबे, तरक्याती काम का जायजा लेने के लिए वर्ल्ड बैंक का आला सतह का वफद का दौरा। MD PMDFC सैयद जाहिद अजीज की क़यादत में PCP की टीम ने भी मंसूबों बारे आगाह किया। सैयद जाहिद अजीज ने मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। आज वर्ल्ड बैंक की टीम स्पेशली इसलिए आई थी कि सेफ्टी के मेयार हैं उसके ऊपर पूरा उतर रहे हैं प्रोजेक्ट के लिए, काम की रफ्तार कैसी है, उसके अलावा जो शिकायत की अदाले का निज़ाम है वो म्यूनसिपैलिटी में ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, आपकी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। इजलास के दौरान डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी ने शहर के तारीखी पहलुओं और खद्दोखाल पर रोशनी डाली। बोले, पंजाब सिटीज प्रोग्राम के तहत मशीनरी मिलने से शहर में सफाई का निजाम बहुत बेहतर हुआ है। शजरकारी मुहिम से ग्रीन बेल्ट्स मुकम्मल, जबकि रंग रोगन से दीवारें भी सज गईं। चौक चौराहों की बहाली पर काम जारी है। वर्ल्ड बैंक की टीम ने तरक्याती कामों का मुआयना किया, जरूरी इकदाम उठाने की भी तलकीन की। वर्ल्ड बैंक की टीम ने अमूमी तौर पर तो इत्मीनान का इजहार किया है, हमारे तमाम पैरामीटर्स पूरे हैं, लेकिन सेफ्टी के मेयार को मजीद इस पर फोकस रखने का और बरकरार रखने का कहा है कि ताकि जहाँ भी काम हो रहा हो प्रॉपर वहाँ पे कॉर्डन किया हो, इलाके को कोई खुदाई की हो, वहाँ पे कोई गिर ना जाए, उसके लिए भी कॉर्डन किया हो। वर्ल्ड बैंक की टीम ने म्यूनिसिपल कमेटी, पार्किंग शेड और टफ टाइल्स के मंसूबों का भी जायजा लिया। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, CT41 जंग। जंग में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इजलास, जिले जनरल सेक्रेटरी आसिफ डहडी ने सदारत की। मुस्लिम लीग नून के लाहौर जलसे को कामयाब बनाने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इजलास में डॉक्टर नईम सिंधु, जाहिद अदील, नवाज खान और दीगर ने शिरकत की। जिले जनरल सेक्रेटरी आसिफ डहडी का कहना था कि नून लीग की जानिब से कामयाब आगाही मुहिम चलाई गई है, जिसमें अवाम ने भरपूर रिस्पॉन्स दिया है। लाहौर जलसा कामयाब बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे।